Good morning, dear students. As in the last chapter, that is Unit 2, A part, we talked about ionic solids. What we thought in ionic solids about the structure, their shape, then how the atoms are arranged in that, how the compounds are forming, what are the rules, what is solvation energy, what is polarization, and much more. Now we are going to start the B part, that is metallic bonding. From the name itself you will understand the bond between the metal atoms is called as metallic bonding. ये जो चैप्टर है बेसिकली मेटल्स में जो बॉन्डिंग होती है उससे रिलेटेड है. ठीक है, उनका फंक्शनिंग कैसा होता है, वो किस तरह से एक्ट करते हैं, उन मेटलिक बॉन्डिंग जो है उसकी स्टडी करने के लिए कौन कौन सी थियरीज आई, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे. सो हियर वी गो. सो व्हाट इज मेटलिक बॉन्डिंग? फर्स्ट वी शुड नो दैट metallic bonding, from the name itself you can understand the bond between the metallic atoms is called as metallic bonding, or the force of attraction which binds two or more metallic atoms together is called as metallic bonding. Now metallic bonding is formed naturally. From the name itself it is formed only in metals. Now how many metals are there? There are more than 80 elements which are metallic in nature in periodic table, except some metals like mercury and gallium which are not in solid state. Okay, while the remaining are in solid state. Now how you can identify them? They have very special characteristic. Just we will go through them. The characteristics like high thermal and electrical conductivity, they have bright luster, malleability, ductility, all these properties and many more properties are shown by metals. Now why they are shown? This is shown due to only one special characteristic, that they possess metallic bonding. अब मेटलिक बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्डिंग, इनमें क्या डिफरेंस है? अगर आपको याद हो तो कोवलेंट बॉन्ड मतलब कोवलेंट बॉन्ड में आता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोवलेंट बॉन्ड इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड. आयनिक बॉन्डिंग में विच एवर इज द स्ट्रॉन्गर वन, अगर बी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो ए से उसके इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेगा और वो उसके पास हो जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज. तो इसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड. सो इट इज़ नॉट द म्यूचुअल शेयरिंग, इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दैट इज़ आयनिक बॉन्ड. नाउ these metals have this special characteristic. This is the force of attraction between the metals or metal atoms which binds them. So that's why this binding is called as metallic bond. Due to that only they have a characteristic to conduct electricity in their solid state. Okay. Now covalent जो compound होते हैं उनमें अभी मैंने बताया कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो नेचुरली दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. ओके, सो ये कभी कभी पूछा जाता है कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉट. द रीज़न इज कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आता है, उनका जो ऑक्टेट है, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल है वो ऑलरेडी फील्ड हो जाता है. 8 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे वो ऑलरेडी स्टेबल होता है. तो ऐसे कंडीशन में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसने ऑक्टेट फिलअप कर लिया होता है या ऑक्टेट सेटिस्फाई कर लिया होता है, उसकी वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं रहेंगे. और जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं मीन्स देयर इज़ नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट और देयर इज़ नो कंडक्शन. सो दैट्स वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर bad conductor of electricity, जबकि metals are good conductor of heat electricity
because they have free electrons with them. Okay. Now these metals have neither ionic bond nor covalent bond. But to explain the metallic bonding, various theories have been put forth, जिसमें से हम एक एक करके देखने वाले हैं. तो पहली थियरी है इलेक्ट्रॉन गैस थियरी. इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल या फिर मेटलिक बॉन्डिंग थियरी. ऐसे इसके बहुत सारे नाम हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन थियरी, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, मेटलिक बॉन्डिंग थियरी और इलेक्ट्रॉन गैस थियरी. ओके. अब इस थियरी के बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया था ड्रूड्स और लॉरेंस ने. ड्रूड और लॉरेंस जो है उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया इस थियरीज़ का, जिन्हें बहुत सारे नाम दिए गए हैं जो अभी हमने देखे. तो इसलिए उस थियरी को और एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं ड्रूड लॉरेंस थियरी. अब ड्रूड लॉरेंस थियरी कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बेसिस है. मतलब जो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके जो बेसिक स्तंभ बोल सकते हो या फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जिनकी वजह से उनमें वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्शन करने के. तो सबसे पहला है उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी. वो बहुत ही लो होती है. ये आयनाइजेशन एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण है इस थियरी को समझाने के लिए. दूसरी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये वाला. तो पहले हम फर्स्ट कंसेप्ट को समझेंगे कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से हाउ दे आर स्पेशल. तो बेसिकली इस जो थियरी में क्या बताया गया है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी, आपको ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है. इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एनी एटम टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, है ना. तो ये जो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में आउटरमोस्ट शेल में, तो उसका जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगेगी उसको हम बोलेंगे IP या IE. लेकिन मेटल्स में ये जो IP या IE होता है वो लो होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं वो लूजली बाउंडेड रहते हैं. मतलब उनका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन या न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट जो होता है इन इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता है. सो दे आर नॉट टाइटली बाउंड. जब वो टाइटली बाउंड ही नहीं होंगे तो उनको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करना बहुत आसान होगा, यानी कि कम एनर्जी लगेगी. उसी को क्या कहते हैं हम, IP या IE, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी. सो दैट्स वाई दे हैव लो IP और लो आयनाइजेशन एनर्जी. So that's why the valence electrons can move freely out of the influence of the nucleus. यहाँ न्यूक्लियस को एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, दैट इज़ कर्नल. हियर यू कैन सी कर्नल मीन्स जब इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने के बाद जो पोर्शन बच जाता है एटम का, ये पॉजिटिव पोर्शन विथ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, उस पोर्शन को हम कहते हैं कर्नल. या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियस और द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज कर्नल. अब ये इलेक्ट्रॉन, सपोज हम सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए. सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11. उसके आउटरमोस्ट शेल में अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 281, यानी कि उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको आसानी से आप निकाल सकते हो. ये तो आप 10th 9th में पढ़ चुके हो. इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, यानी कि इसकी IP क्या है, कम है. अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सोडियम एटम रहेगा क्या, नहीं, वो बन जाएगा आयन. क्यों? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लिया है, तो वो बन गया Na+. तो इस Na+ को मैं बोलूँगी कर्नल. व्हाट आई कॉल इट, कर्नल. सो कर्नल इज द वर्ड for remaining part of the atom after losing its valence electrons. Okay, so except valence electrons, whichever part is left with atom, that is called as kernel. So I hope कि यहाँ तक आपको समझ गया होगा the very first part कि why metals are having low IP. ये 1 mark question में give reason में आ सकता है. So that you should know what is kernel, what do you mean by kernel, what is the role of kernel in conduction of electricity. That also can be the question.
आंसर एक ही है बट इट कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज. ओके, नाउ द सेकेंड characteristic which identifies a metal is their large number of empty orbitals. इनके पास लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स है. इसका मीनिंग क्या है? जैसे अगर अभी हम सोडियम का एग्जांपल ले रहे थे, वी विल कंटिन्यू विद दैट. यहाँ बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, सोडियम भी है उसमें. ओके, सो अभी हमने उसे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन में, जो आप प्रीवियस क्लासेस में देखते थे 281 का, अगर हम SPDF कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 यानी 4 + 6 10, और सेकेंड शेल भर गया है. अभी थर्ड शेल में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s1. लेकिन थर्ड शेल में और भी कैपेसिटीज़ है, p है, 3p भी है और 3d भी है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं. अब ये ज़ीरो रहने की वजह से हम वो लिखते नहीं है 3p और 3d, हम सिर्फ यहीं तक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, है ना. किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन जहाँ तक रिक्वायर्ड है वहीं तक लेते हैं, उसके आगे का नहीं लिखते. लेकिन उसका मीनिंग क्या है कि इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स खाली हैं, मतलब इसका 3p ऑर्बिटल भी खाली है और 3d ऑर्बिटल भी खाली है. मतलब वहाँ खाली होना मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल्स, जितनी वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के, दे आर जनरली लेस देन द नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल्स. इस वजह से लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वैलेंस शेल में वो एम्प्टी रहते हैं. लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वैलेंस शेल के, अगर वो एम्प्टी है, दैट मीन्स दे आर इजीली अवेलेबल फॉर कंडक्शन. सो दैट्स वाई it is called as electron C model. Okay, now what do you call this characteristic in different form? So लॉरेंस ने उसे और एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है इसे हम दूसरे नज़रिए से भी देख सकते हैं. तो लॉरेंस ने क्या कहा? लॉरेंस सेड कि पॉजिटिवली चार्ज्ड जो I'm highlighting the points there, just wait for it. So these are the important features here. Okay, just check it. Now the positively charged kernel of metals, they are arranged in regular fashion in the lattice. हमने प्रीवियस चैप्टर में लैटिस के बारे में बात की थी. इस तरह के क्यूब में हमने उसे क्या बोला था? यूनिट सेल एंड सो मैनी मोर. तो वो जब यूनिट सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक लैटिस बोलते हैं. तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं मेटल के, वो भी रेगुलर वे में अरेंज होते हैं लैटिस में. ठीक है. और ये जो ईच कर्नल होता है मेटेलिक लैटिस का, वो लूजली हेल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सरमाउंटेड होता है. मतलब हर नेचुरल एटम बोलेंगे तो उसके एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑलरेडी लूजली बाउंडेड रहेगी कर्नल में, है ना. तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, जो लूजली हेल्ड है टू इट्स कर्नल, एंड देयरफॉर देयर इज़ अ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटेलिक लैटिस. इसका मतलब क्या हो? ये इस लैटिस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूजली बाउंडेड है, अगर आप थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई कर दो तो वो आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हैं. मतलब उनकी मूवमेंट क्या बताएगी? दे आर इजली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच कैन इजली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज दे आर लूजली बाउंडेड, सो दे आर कॉल्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. इस मोबिलिटी की वजह से ही हम उन्हें क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. मतलब वहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी संख्या बहुत सारी है जो इजीली अवेलेबल है ना. तो इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सी. और इस मॉडल को कहेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. अल्टरनेटली इट कैन बी अज्यूम्ड दैट देयर इज अ सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन विच पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स आर इमर्ज्ड. मतलब कर्नल्स बीच में है
और इलेक्ट्रॉन्स उसके आजू बाजू में अरेंज है। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो जो कंसेप्ट कहना चाहता है कि ये जो पॉजिटिव पोर्शन है वो है कर्नल, और ये जो डॉट्स दिखाए गए हैं वो क्या है, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसे हम कहते हैं सी मॉडल। ओके, देन you can take many examples like lithium में 1s2 2s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो उसके पास मतलब एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और जो 2p ऑर्बिटल है वो खाली है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो मतलब अगर वो लूज़ कर लेता है इलेक्ट्रॉन तो कर्नल बन गया Li+। लिथियम क्या बन गया, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो वो बन गया Li+। और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है लैटिस में, उसके पास अवेलेबिलिटी है 2p ऑर्बिटल की, यानी कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल है। सो यहाँ बाकी के इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आसान हो जाएगी। सो दैट्स वाई दे आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ऑल्सो। सिमिलरली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नल्स के बीच में, ये जो है इन मेटल एटम्स को बांध के रखता है, इन मेटल एटम्स को बांध के रखता है, जिसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ओके, सो होप you have understood this concept. Remaining properties we can see in the next class. Thank you and have a nice day.